This is your lab for the subject of communication system. But since we have not gone through the basic idea or the theoretical concepts of communication system in class as of now, so I would like to cover some basic concepts which will be an added advantage for you once you go through this subject in your own particular classroom. Okay. आपने एक concept पढ़ना है आगे which is known as the frequency shifting property of Fourier transform. ठीक है? Let's assume that if I have a signal x of t, if I go for the Fourier transform of the signal, I give it as x of f, capital X of f, where I can see that this time domain signal has been converted into a frequency domain signal. आपको समझ आया? एक Fourier transform क्या कर रहा है? बेटा आप इधर आएंगे, उस ग्रुप से टूट के इधर आएंगे. So ये कन्वर्ट करता है ये कन्वर्ट करता है हमारे टाइम डोमेन सिग्नल को किधर Fourier ट्रांसफॉर्म जो है ये हमारे टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करता है इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल. पॉइंट नंबर 1. Let's say x of t was our time domain signal and it is being converted into the frequency domain signal denoted by x of f. अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या चीज है? अगर मैं x of t को मल्टीप्लाई करता हूं बाय एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल e of j 2 pi f naught of t, अगर मैंने x of t को मल्टीप्लाई किया किससे? एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल से which has the frequency component as f naught. Now when I go for the Fourier transform of such a signal, its Fourier transform will be denoted by x of f minus f naught. Is that clear? क्या हुआ ये कि इसका frequency spectrum या amplitude spectrum जो है वो shift हो गया. By how much? f naught. ठीक है? सिंपल फिलहाल याद रखने के लिए. समझ आपको मेरी डिटेल में क्लास में आएगा या मेरी अहेड में विल गो फॉर द सेकंड. Likewise, if I have a signal x of t and if I multiply it by minus j of 2 pi f naught t, the shifted version will be x of f. Exactly right. Plus f naught. ठीक है जी. इसका मतलब by multiplying a signal x of t by an exponential we were able to shift the frequency by the frequency that is present in the exponential. Yes or not? Likewise we were able to shift the frequency in this by f naught by using this exponential. इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं. इतना हमने लिख लिया ना? Let's assume that for example, if my x of t is equal to 1, हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. So by using this example as example 1, assume that x of t is equal to 1. Its Fourier transform x of f is given as delta of f, where delta of f is an impulse function. Have you heard of this function? Impulse function. अब इसको रिप्रेजेंट करने या इसका जो स्पेक्ट्रम होगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, वो कुछ इस तरह से होगा. At point 0 I have an impulse, right? जिसका amplitude होगा 1 because nothing is multiplied over here. Do you get my point? Am I correct? याद रखिए 1 का जो हमारा ट्रांसफॉर्म होगा that is given as delta. ठीक.
delta is actually an impulse signal at the origin. Delta is actually an impulse signal at the origin. Okay. अब जब मैंने कहा I have my signal 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं e raised power j 2 pi f naught of t से, what will happen to this Fourier transform? उतना क्या हो? जोर से सीआर, जरा जोर से बोलो। ये जोर से बोल रहे थे। बढ़पान एग्जैक्टली राइट, बिकॉज मैंने आपसे कहा जब 1 था आपका सिग्नल, तब ट्रांसफॉर्म x ऑफ f था बराबर डेल्टा f। जब आप एक एक्सपोनेंशियल उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बनता है x ऑफ f माइनस f नॉट, but x of f is equal to delta f, so therefore the net result will become delta of f minus f naught. इसको हम प्लॉट करने के लिए जाए तो ये आपका जो ओरिजिन था, आपके ओरिजिन से ये पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे f minus f naught equal to 0, so f will be equal to f naught. So आपको f का वैल्यू निकल गया, इस केस में f is equal to 0, right? Directly we have put f equal to 0 and you get the 0 point. इस केस में इस सब को पुट करना है to 0, you get the f will be, new f will be equal to f naught, और f naught पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब इम्पल्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इम्पल्स क्या हो जाएगा? डीले हो जाएगा, ठीक है? या बल्कि हम कहेंगे शिफ्ट। फिलहाल के लिए एडवांस डिले का कंसेप्ट अपने दिमाग में डालिए, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? आपका नंबर 5 है। ओके, जरा आप बताइए नेक्स्ट सवाल का जवाब। बाकी सब खामोश रहेंगे। क्या आएगा इसका स्पेक्ट्रम? वेरी नाइस। ओ जी, आप बताओ इसका ग्राफ कैसे आएगा? खड़े हो जाओ, दिखाओ जल्दी से, जल्दी से। पहले ऑरिजिन बनाओ, ऑरिजिन का पॉइंट बनाओ। ये ना ऑरिजिन, ये है ऑरिजिन का पॉइंट 0। शाबाश। कहाँ होगा f नॉट, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, हाँ जी, बैठे यहाँ। विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ये f है, सॉरी दिस इज f है, बिकॉज मैंने आपसे कहा ना कि दिस इज द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैसे एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड बताता है मुझे। स्पेक्ट्रम के असली 2 टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम, ठीक? या फ्रीक्वेंसी, ठीक? सो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि इस सिग्नल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की क्या इंटेंसिटी है, उनका एम्पलीट्यूड कितना है। उसी से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है। मतलब सपोज बाकी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का वैल्यू होगा 0, खाली एक का होगा से 1 और 10, इसका मतलब वही बस एक फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करती है। देखो बच्चे, हातिम शाह नाम से यहाँ पे क्यों आप सोए थे? मैं क्या कह रहा था इन सब से? मैं नहीं कह रहा था कि आप टीचर को रोको, बोलो सर मुझे ये समझ नहीं आया। जब आपको ये समझ नहीं आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने कहा ये वाला सुनो, ये वाला वैल्यू है, इसको पुट करना है 0, वहां से f का जो वैल्यू निकलेगा वहीं पे ये शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे किसको मैं पुट करूंगा 0? जोर से बोलो आप। जो बड़े बनता f प्लस नॉट, f प्लस f नॉट इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू माइनस f नॉट। इसका मतलब शिफ्टिंग जो आएगी ये माइनस f नॉट पे आएगा। मेरा इंपल्स जो होगा वो माइनस f नॉट पे आएगा, ठीक है? आप वाली ग्रुप में से कोई अगर फ्री हो अंदर आ सकता है। दर्शना आस्किंग लैब तभी बोला
समझ आया? दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. ओके, इसका मतलब अगर मैं 1 के बदले अब कोई और सिग्नल लूंगा, अगर मैं 1 के बदले कोई और सिग्नल लूं, उसके अंदर भी शिफ्टिंग हो जाएगी. सही है कि नहीं? वही हम करने जा रहे हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हाँ जी, हाँ जी, सबने कॉपी कर लिया? तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है कि अगर आपको पता होगा एक कोसाइन सिग्नल जो है, कॉस सिग्नल, सपोज यहां पे है a cos ऑफ 2 पाई f नॉट t. किसी ने सुना है यूलर्स आइडेंटिटी, यूलर्स फॉर्मूला? किसी ने सुना है? किसने? ठीक, सही बता रहे हो. यूलर्स आइडेंटिटी से हम एक कोसाइन फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग 2 एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स. क्या मतलब? I can say my a cos of theta can be written as a into e raised power j 2 pi f naught of t plus e raised power minus j 2 pi f naught of t divided by 2. Why? Because we know cos of theta is equal to e raised power j theta plus e raised power minus j theta divided by 2. ठीक है? ठीक है, याद रखा? आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि यूलर्स आइडेंटिटी को देखना, यूलर्स फॉर्मूला को देखना. लिख लीजिए साइड में, यूलर्स फॉर्मूला क्या चीज है उसको देखना. इस तरह साइन की भी रिप्रेजेंटेशन देख लेना. ठीक है? Shall I erase this? बस इतना मैंने erase किया. अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो दिस विल बी a by 2, अंदर बचेगा. यहां पे कुछ है नहीं तो नथिंग मींस, इसका मतलब 1 into j 2 pi f naught t plus 1 into e raised power minus j 2 pi f naught t. If I ask any one of you to find the Fourier transform of this, can you tell me the transform? Who can tell me? Raise your hand. Who can tell me the Fourier transform? Raise your hand. 1. Anyone else? 1, 2. बताइए. बस जमा किया बिस्कुट के ज़्यादा 5 हो गए जमा के लिए. बताइए क्या उसको माना? 2. 2 number 5. You can do it. Nice. What about you, lady? You can't do this? You can do this? Okay. Can you stand up and do it on board? ये आपको खाने जाएंगे आंखों से, आप इनकी तरफ पहले देख रहे हो. ये जी देते भी है. वैसे भी इनको आप दिख रही हो थ्रू आउट द डे. बोर्ड पे आने से इनको ज़्यादा नहीं दिखने लगेगी. ठीक है? वैसे ही है ना? So just remove this fear of board or stage from your mind. ऐसे भी मैं आपको देख रहा हूँ. अगर आप यहाँ होंगे तो तभी तो मुझे आप दिखोगी ना, कि नहीं? आप अंदर से चेयर लाइए ना. देखो बच्चे, अभी यहाँ पे बोर्ड पे था ना 1 into e raised power j 2 pi f naught. उसका जब आपने ट्रांसफॉर्म निकाला डेल्टा ऑफ f minus f naught नहीं आया, तो फिर क्या हुआ? डर लगना चाहिए, वो अच्छी बात है, मगर डर के आगे जीत है ना. So it is delta of f minus f naught plus delta of f plus f naught. कितना सिंपल है ये. अच्छा जी, अब मैं आपको बोलूं स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, आएगा स्पेक्ट्रम बनाना? ये आ गया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसका स्पेक्ट्रम कुछ इधर से बनाएंगे. Majority of you have done it correctly, but just to keep it on record,
इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से बनेगा. दिस इज द ओरिजिन. Since we have two impulse functions, one is at delta of f minus f naught and another is delta of f plus f naught. Therefore, I mark one point as f naught, I mark another point as minus f naught. I make two impulses, one at this point, another at this point. What will, by the way, they will be of same height or not? Yes. And the magnitude will be a by 2, which is clearly written over here. Is that okay? Magnitude hoga a by 2. And this is the frequency, this is the amplitude. So this happens to be known as the amplitude spectrum of the signal, which is your cosine signal. ठीक है जी, बहुत important है, ये बहुत important point. इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी सिग्नल को कोसाइन सिग्नल से मल्टीप्लाई करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मॉड्यूलेशन का क्रक्स है. मॉड्यूलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी सिग्नल x ऑफ t को कोसाइन सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी से ये मॉड्यूलेट हो गया. लेकिन अंदर समझना है असली हो क्या रहा है. मॉड्यूलेशन में हमने लास्ट टाइम कहा था, एक मॉड्यूलेशन में थोड़ा पुराना मत कॉपी कीजिए बेटा, जो मैं बोल रहा हूं ना वो सुने. मॉड्यूलेशन में हमारा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. दिस इज वन स्टेटमेंट. और अ मोर फॉरवर्ड स्टेटमेंट इज, अगर आप फ्री है ना, आप वाला ग्रुप, आप भी इधर ही आइए. हमने कल आधा अधूरा ही पढ़ा था, अगर आप चाहते हैं तो, वरना जरूरी नहीं. सो मॉड्यूलेशन में हमारा या तो ये होता जो मैंने बताया. दूसरा इज मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन. दैट इज अ बेस बैंड सिग्नल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बैंड पास सिग्नल. ये दोनों डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन की. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी मैं कोसाइन सिग्नल मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी सिग्नल को x ऑफ t, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हो जाएंगी काइंड ऑफ इनटू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. वन विल बी सेंटर्ड एट f नॉट एंड अनदर एट माइनस f नॉट. आपको समझ आ रहा है? मतलब जो भी उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो f नॉट को ऐड हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाट वी मीन कि एक छोटी फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हायर फ्रीक्वेंसी. अभी समझ नहीं आ रहा है, आई नो, बट वेट. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई एक्चुअली टू सिग्नल्स x ऑफ t. आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. हेडिंग नंबर 3 इज मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी अब क्या है? अभी जो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और कोसाइन का जो हमने पढ़ा, ये पोस्टमॉर्टम हमने किया, इन दोनों को कंबाइन करें तो बनती है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में ये होता है, जब हम एक सिग्नल लेते हैं x ऑफ t, इफ x ऑफ t इज अ सिग्नल whose Fourier transform is x of f, then x of t multiplied by cos of 2 pi f naught t will actually result into x of t into e raised power j 2 pi f naught t plus e raised power minus j 2 pi f naught t divided by 2. Am I correct or not? सही है ना ये बच्चे? ये कौन बोलता है बच्चा? ओके. सो ये होगा नेट रिजल्ट. ठीक है. वहीं अगर x ऑफ t मल्टीप्लाई कर यार, Now if I go for the Fourier transform of
these signals, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, that will be what? Can you tell me? Can I just say that this will be x of f minus f naught? क्योंकि ओरिजिनल का क्या था? x of t का था x of f. हाँ? हाँ? हाँ है, सही बात है. तो चलो 2 को भी रखते हैं, इधर भी है. एंड इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा x ऑफ मन x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ f. x of t into this exponential signal, फोरियर ट्रांसफॉर्म will be equal to, पूरा बोलो, पूरा नाम बोलो. क्या इनकी मुंह में एक्स्ट्रा जुबान है? जरा मुंह खोल के दिखाओ. इसमें भी, इसके मुंह में भी एक ही जुबान है, तुम्हारे मुंह में भी एक ही जुबान है. आधा ही क्यों बोल रहे हो? x of f plus f naught. ईशा सही की गलत? मुश्किल चीज मत सीखना. एनीवन जिसको समझ नहीं आया तो तुमने समझी? मैं कसम, आपको समझ आया? नहीं आया. लॉजिक आपको जो आपके सामने, आपको समझ आया? तब के मैंने लोगों के पास में खेल लिया था. ये लैब और समझ किस तरह के छोड़ लैब के लास्ट में जाना था. थोड़ा जल्दी हो गई. This was a wrong decision, by the way. Don't repeat this decision. Whenever a new class or new lab is starting, be there for the starting period. You can finish faster and you can leave. That is logical. Okay. Conclusion लिखिए. Therefore, if we multiply the original signal, therefore, if we multiply the original signal, that is x of t, or if we multiply any signal, and better original signal लेना. If we multiply original signal by the cosine signal, comma, या by cosine function, cosine function is a better word, by cosine function, comma, it gets modulated. It gets modulated. It gets modulated. इसका स्पेक्ट्रम अगर बनाना होगा आप बना सकते हैं. हाँ, इसका बना सकते हैं आप स्पेक्ट्रम. कहाँ बना सकते हो? इसका स्पेक्ट्रम करेगा डिपेंड x ऑफ t के स्पेक्ट्रम पे. वो मत आपको पता है क्या? सही. इसका स्पेक्ट्रम करेगा डिपेंड x ऑफ t के स्पेक्ट्रम पे. एज लॉन्ग एज यू डोंट नो दैट स्पेक्ट्रम, यू कैन नॉट मेक द स्पेक्ट्रम. क्योंकि शिफ्टिंग किसकी हो रही है? x ऑफ f की, जो किसका स्पेक्ट्रम है? x ऑफ t का. सो यू नीड टू नो x ऑफ f, फिर x ऑफ f की आप शिफ्टिंग करेंगे. दैट इज ओके. क्या ठीक? You can take a break of say 10 seconds to breathe. तो जरा ये आप लिखिए. by modulation a low frequency signal, by modulation a low frequency signal is converted into a high frequency signal. By modulation, point number 1, the signal is translated from low frequency region. The signal is translated from low frequency region to high frequency region. Point number 2, base band signal becomes band pass signal. ये आपको आगे जाके समझ आएगा ये क्या हो गया. बेस बैंड सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसमें बेसिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0. बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल हो गया जिसमें एक पर्टिकुलर बैंड होता है, बड़ा वाला बैंड कहीं पे आगे, अदर देन 0 नहीं होता है. So base band signal becomes band pass signal. Wide band signal becomes narrow band signal. वहीं पे लिखिए डीमॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन आपने अब समझ लिया, थोड़ा सा आइडिया मिला कुछ कि क्या होता है. मॉड्यूलेशन से हमारे सिग्नल की, फिलहाल इतना याद रखिए कम से कम, अगर कुछ नहीं समझ आया, मॉड्यूलेशन से हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है?
रोल नंबर 60, आपका नंबर क्या है? 63, 67। मॉड्यूलेशन से अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, यू टू एट द बैक, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया बस इतना याद रखिए, मॉड्यूलेशन से हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम मेबी वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर। ठीक, अब डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस। डीमॉड्यूलेशन, जब आपने सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट क्यों कर रहे हैं बाय द वे हम, ताकि हम इसको फ्री स्पेस में रिलायबली भेज सकें। ठीक, आपने भेज दिया, अब ये रिसीव कहां पे होगी? रिसीवर साइड से, बाय रिसीवर एंटीना। लेकिन एंटीना ने जब इसको रिसीव किया तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन? डीमॉड्यूलेट करना। सो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन of the message signal from the receiver side. Demodulation is the process of reconstruction of the message signal at the receiver side. ठीक, लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शन किस सिग्नल में से होगी? मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो इसने रिसीव किया। अभी तक जो आपने देखा, अगर मैं अब आपको कहूं मेरे पास जी एक सिग्नल है m of t, आप लिखिए लेट m of t बी द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल मतलब क्या? कोई ऐसी चीज जो मुझे मॉड्यूलेट करानी है और मुझे आगे उसको भेजना है। मुझे सपोज अवंतीपुरा से लाल चौक कोई सिग्नल भेजना है, वो कहलाता है मैसेज सिग्नल m of t। m of t is denoted as am cos of 2 pi fct, और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। 0, अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूं इंटरफेरेंस डिराइव करके, fm, सॉरी fm यहां पे आएगा, fc नहीं, fm, आइज ऑन बोर्ड प्लीज। fm एक यहां पे और दूसरा यहां पे माइनस fm, दो कंपोनेंट्स। अब आपको समझ आ रहा है ना क्यों दो कंपोनेंट्स है? कॉस सिग्नल से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे 1 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा am by 2। क्यों? क्योंकि कोसाइन जब ब्रेक करेंगे हम इनटू एक्सपोनेंशियल, वहां से एक 2 आता है, वो डिवाइड बाय हो जाता है फॉर दिस एम्पलीट्यूड, जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड आपका है। वहीं पे लिखिए मॉड्यूलेशन की एक और डेफिनेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन। इसमें लिखिए हैश टैग कीजिए इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं मॉड्यूलेशन की, इस पे जरा इस पे हैश मार्क कीजिए। इट इज द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द पैरामीटर, इट इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द पैरामीटर बोला você é para okay, it is the process in which one of the parameter bracket में amplitude comma frequency और phase bracket band of the carrier will be varied linearly in accordance with message signal
amplitude variations. Point to remember here that it will always be the message signal amplitude variations that will vary. I repeat, it will always be message signal amplitude variations that will either vary the amplitude of the carrier. So that type of modulation is known as amplitude modulation. When the message signal varies or changes the amplitude of the carrier, or I would say when it scales the amplitude of the carrier, this type of modulation is known as amplitude modulation. When the message signal amplitude varies the frequency of the carrier, the resultant modulation is known as, louder please. Excellent. Yes, you are getting it. Frequency modulation. Now when the amplitude variation of the message signal vary the phase of the carrier, this type of modulation will be known as phase modulation. आपको समझ आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, लेकिन फिर भी yes बोलते हैं, यही मसला है। आया समझ कॉल लीजिए? समझ आया? सच बोल, समझ आया? समझ आया? समझ आया? हाँ? ऐसे घूम जाना ना, क्या करेगा घूम ना? नहीं आया, नहीं आया, सुना तो yes। मैं क्या कर रहा हूँ? समझ आया आपको बेटा सबको? सो ये है। अगर मैं अब आपको बोलूं जरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखिए, जरा खुद से लिखिए एम्पलीट्यूड। Now in order to understand amplitude modulation better, by the way amplitude modulation definition आप लिख लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। Amplitude modulation is the process of varying the amplitude of the carrier with respect to the amplitude variations of the message signal. Yeah, in accordance with the amplitude variation of the message signal. So let's say my message signal for time being is this, like this. It is the amplitude and this is my time. Okay? And let's say my carrier wave is denoted by C of t. Let's say my carrier wave is something like this. I will just to restrict the amplitude, मैं यहाँ पे एक dots लगाता हूँ. Let's assume we have a positive side as well as the negative side of this carrier wave, which is a sine wave or cosine wave. इसलिए मैंने word use किया था cosine function, because sine और cosine interchangeably use होते हैं हमारे communication वगैरह। जो resultant signal होगा when I multiply these two signals, that is when I go for modulation, modulation means m of t into c of t, जो resultant signal होगा उसमें एक positive envelope भी आएगा और एक negative envelope भी आएगा। What do I mean is आपका जो signal होगा उसमें एक positive envelope भी आएगा, एक negative envelope भी आएगा। Reason being, मैंने क्या कहा, आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड स्केल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ योर मैसेज सिग्नल। आई विल रिपीट, आपके ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दिस our graph of understanding will decrease as this is the peak point. Please understand this, as I told you that the amplitude of your carrier wave will scale with respect to the amplitude of the message signal. So that means when I have the origin, my actual amplitude will be just like this. Now since I know that my wave goes down also towards the negative side, so I will have a very small negative peak as well, ठीक? Which will be again scaled by the same factor. Suppose ये अगर 0.2 है यहाँ पे और ये 10 plus 10 था, 0.2 into 10 is how much? 2. Likewise ये यहाँ पे -10 था और ये यहाँ पे 0.2 है. 0.2 into -10 is how much? -2. So that's why आपका ग्राफ ऊपर भी 2 तक जाएगा, नीचे भी 2 तक जाएगा, ठीक है? Now moving on, as the amplitude increases of the message signal, ये जो scaling है ये बढ़ती जाएगी. However, the frequency remains same, only the amplitude of my carrier signal has increased. आप देख पा रहे हैं? मेरा carrier signal ये था, इसका amplitude जो है instantaneous amplitude वो स्केल हो रहा है। आप इसको इसके सेंटर में बनाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये ऑरिजिन है, मेरे मैसेज सिग्नल का ऑरिजिन ये है,
सो जो आपका मैसेज सिग्नल का एनवलप था वो प्रिजर्व हो गया आपके, दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इफ दिस इज m of t, this is c of t, this is s of am of t. This signal is known as the modulated signal. इसमें क्या हो गया, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो स्केल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव. This signal is known as S of am of t. This signal corresponds to the amplitude modulation where the original message will be stored in the form of amplitude variations. अब आप इस चीज को भूल जाइए कि मेरे पास ये सिग्नल, ठीक है ना, forget about this part. ठीक, आपने उतार लिया ये. Now let's forget about this part and मेरे पास रिसीवर साइड में मुझे क्या मिला, खाली ये वाला सिग्नल है ना. क्या आप मुझे इस सिग्नल की शक्ल देख के बता सकते हैं कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल क्या था? नहीं, आप बता सकते हैं कैसे? कैसे आप बताइए, आप बता सकते हैं and you know the answer. Can you tell me how? Imagine that I have no information whatsoever about this or all of this. Now what I have received is just this signal. If I devise a circuit, listen to me please, in order to extract the message back from this received signal, if I devise a circuit which only tracks the positive envelope of, which catches the positive peaks of the signal, मतलब मैंने एक सर्किट डिवाइस किया, उसने पॉजिटिव पीक्स जहां जहां पे हो रही है उसको प्लॉट किया, उसको प्लॉट किया, एंड देन आई हैव अनदर सर्किट से टाइमिंग जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा. क्या मुझे ओरिजिनल सिग्नल वापस नहीं मिला? सो माय मैसेज सिग्नल वाज स्टोर्ड इन द पॉजिटिव एनवेलप्स ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. एक एएम सिग्नल के लिए, एक एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के केस में मेरी जो मैसेज सिग्नल होती है वो होती है पॉजिटिव एनवेलप में. किसमें होती है? याद रखा आपने? दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर योर वाइवा. एएम सिग्नल में आपकी मैसेज सिग्नल कहां छुपी होती है? एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में. दिस इज वन आंसर. या पॉजिटिव एनवेलप में. तो इसीलिए जो हम सर्किट डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एनवेलप डिटेक्टर, क्योंकि वो बस सिग्नल का एनवेलप ट्रेस करता है, और एनवेलप अगर ट्रेस हो गया आपको वही का ओरिजिनल मैसेज सिग्नल छुपा हुआ होगा. नाउ व्हेन वी गो टू एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वहां पे आपकी मैसेज जो छुपी होगी वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस में छुपी होगी. तो वहां पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से कोई पैरामीटर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसको रिलेट करना है फिर ओरिजिनल सिग्नल से. यहां पे हमने एम्पलीट्यूड को एक्सट्रैक्ट किया, वहां से ओरिजिनल सिग्नल निकला. ठीक है, समझा? सो दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. बस हो गया. नहीं, मैं नहीं खाऊंगा. देखा सबने? आप जरा, आप 4 5 इधर आइए, आप 5 6 इधर आइए. देखिए मने ट्राई करो. हाँ, I'll do an experiment with them. If they understand, fine. If they don't, आ जाओ जरा. आप 4 भी आ जाओ. आप 4 आ जाओ. आप 4 आ जाओ. चारों आपके बच्चे बड़ा आ जाओ. आ जाओ. एक दस
देखिए देखिए हम जो किट यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका AC/DSB-S04 DSB-SC एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन ट्रेनर किट। ठीक है, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। लाइक मॉड्यूल 1, ज़रा ये आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 1 लिखा है, आप इसको हाथ से दिखाइए। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 1 लिखा है। ठीक, ये एक ऑडियो एम्पलीफायर है। इस तरह मॉड्यूल 2 है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 2 लिखा है। ठीक है, ये एक डबल बैलेंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलर है। इसी तरह से बाकी सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक, खैर हमें फ़िलहाल यहाँ से ज़्यादा यहाँ की फ़िक्र है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज़ बेटर है ना, यस दिस इज़ ओके। देखिए अब जो हम यहाँ पे प्रोब हमने यूज़ किया है दैट इज़ ओवर हेयर। ठीक, इस प्रोब को हम पहला जो काम करेंगे वो हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। कैन यू सी द ग्राउंड हेयर? ग्राउंड दिख रहा है? हाँ, एक क्लियरली विजिबल है। इट्स ओके। सो आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे इस वाले सेक्शन नंबर 4 में जो आपका AF मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेटर, ये आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, बस एक ही ग्रुप देखेगा, बाकी ग्रुप्स को मैं इसके बाद दिखाऊंगा। तो इसका मतलब इसको ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे दूसरा एक साइन आउटपुट है। मैं जब इसको टच करूँगा, कैन यू सी द साइन वेव ऑन द ग्राफ? हाँ, इतना थोड़ा सा बस, हाँ बस, दैट्स ओके। सो ये साइन आउटपुट है। आई कैन सी द साइन वेव क्लियरली एज एन आउटपुट। अब ये साइन वेव मैं दे रहा हूँ इसको, ये साइन वेव मैं दे रहा हूँ इसको। सो ये साइन वेव जो यहाँ से जनरेट हो रही है, ये आपका मैसेज सिग्नल है। क्या है? मैसेज सिग्नल, जो मैं भेजूंगा आगे। इसका मतलब ये मैसेज सिग्नल मुझे दूसरे सिग्नल के एनवेलप में स्टोर होना चाहिए। क्या सही? इफ आई जस्ट चेक दिस अगेन, क्या साइन वेव क्लियरली? फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़रा हम वैरी करेंगे। थैंक्स टू आवर ऑसिलोस्कोप्स। ठीक है, इस साइन वेव, दैट मीन्स हमारा जो एनवलप होना चाहिए किसी और सिग्नल का, उसमें ये साइन वेव का नेचर दिखना चाहिए। अगर उसमें उसके एनवलप में साइन वेव का नेचर स्टोर हो गया, वी विल से दैट सिग्नल हैज़ बीन मॉड्यूलेटेड। ठीक, अभी हम इस मैसेज सिग्नल को उठाएंगे। ये बहुत सिंपल मॉड्यूलर किट है। इसको कहाँ देंगे? इसको अपने मॉड्यूलेटर में देंगे। इसका ये क्या है? डबल बैलेंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। इज इट विजिबल? आई थिंक इट्स विजिबल। डबल बैलेंस मॉड्यूलेटर का इनपुट जो है वो यहाँ पे है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। ठीक, ये वाला। सो ये मैंने उठाया, मॉड्यूलेटर इनपुट दे दिया। इसका मतलब मेरे मॉड्यूलेटर में इस टाइम क्या सिग्नल जा रहा है? मैसेज सिग्नल जा रहा है। ठीक है, सो दूसरा सिग्नल कौन सा देना पड़ेगा मुझे मॉड्यूलेटर में? दूसरा सिग्नल देना पड़ेगा मेरे कैरियर सिग्नल। हाँ, क्या एग्जैक्टली राइट, कैरियर सिग्नल। तो दूसरा जो मेरा सिग्नल है वो है मेरा कैरियर सिग्नल। एंड हाँ, RF कैरियर आ रहा है यहाँ पे। ठीक, 1 सेकेंड। सर, सोन